بہت سارے جو کلائنٹ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خود ہی سجیسٹ کی ہوتی ہے. زیادہ تر جو آج کل ایشو آ رہا ہے وہ اسٹیرائڈ یوز کرنے سے. ہر عورت کہتی ہے میں نے زیادہ تو کچھ نہیں لگایا, انٹرنل ہیلتھ گٹس جو ہے ہیلتھ کو خراب کرے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عفیفہ اینڈ ویلکم ٹو ایس جی کلینک. آج میں ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنے والی ہوں, وہ ہے پگمنٹیشن, اینٹی ایجنگ, رنکلز. آج کل ہر انسان ہی جوان ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج جو ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے ایستھیٹک کو اتنی نیو پہچان دی ہے, ایستھیٹک کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اب لوگ اپنا اسکن کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بالکل نہیں ڈرتے. سو ون اینڈ اونلی ڈاکٹر سائمہ عظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر میڈم, ٹھیک. سب سے پہلے تو میڈم ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے, آپ اس کو کیسے مینٹین رکھتی ہیں؟ تھینک یو. پہلے تو آپ نے مجھے خوبصورت کہا, بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اگر انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو ایک اللہ کا نور بھی تو ہوتا ہے نا بندے کے اوپر. پازیٹیوٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اس کے بعد جو ہے آپ کی کیئر ہے, جو آپ اپنا کیئر, اپنے مینٹیننس. اور آپ کو پتہ ہے میں تو ایستھیٹکس سے بلانگ کرتی ہوں, تو پھر ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں. جی بالکل. میرے خیال سے پیشنٹ آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہوں گے. جی جی بالکل, وہ ہم صحیح جگہ پہنچ گئے. جی بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ ایستھیٹک پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں کہ وہ خود ڈاکٹر کیسی ہیں, ان سے کوئی ٹریٹمنٹ کروانی بھی ہے کہ نہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ڈاکٹر خود بھی مینٹین ہو. اگر میں تو یہی سمجھتی ہوں اگر ڈاکٹر میں مطلب ماشاء اللہ نو ڈاؤٹ سب ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بھی کیئر کریں اور مزید گرومنگ کریں, جو کہ میں بھی ہمیشہ کرتی رہتی ہوں. اچھا میڈم, اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں بتائیں کہ ویسے تو میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس. ابھی ریسنٹ میں نے آپ کا دبئی کا پروجیکٹ دیکھا تھا, اس کے علاوہ بھی میں آپ کے اکثر پروجیکٹس دیکھتی رہتی ہوں, تو اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی مجھے ایستھیٹک کا ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہے, اور میرا ایک خواب تھا کہ میں نے جو ہے نا ایستھیٹک کا کام ہے اس کو اتنا ایزی بنانا ہے تاکہ لوگ افریڈ نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے انجیکشن نہیں لگوانا, تو میں نے اس کو اتنا یعنی کہ جب بھی کلائنٹ پہ کیا ہے تو اتنا ایزی وے میں, اور ان کو اتنا اسموتھ لگا ہے کہ اب وہ جتنے بھی میرے کلائنٹ ہیں انہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں, بٹ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کروانا ہے. تو جبکہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, لوگ بہت زیادہ اس کام کو کروانے کے لیے ڈرتے تھے اور پوچھتے تھے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن اب وہ سب کچھ اتنا اسموتھ کر دیا, جو میرا ایک مین ایم تھا کہ لوگ اس چیز کو ایزیلی کروائیں اور ریلیکس رہیں, تاکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ کروا رہے ہیں کہ جس کا کوئی بہت زیادہ اس میں نقصان ہو بعد میں. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے پھر آپ کوئی ٹریٹمنٹ ان کے بتانے سے آپ وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ پھر زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیونکہ کچھ آج کل ایک بات اور بھی ہے, بہت سارے جو کلائنٹ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خود ہی سجیسٹ کی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ کروانا ہے, آپ ہمیں یہ کر دیں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس طرح سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہمارے پاس بہت ساری ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, لائک دس گائناکالوجسٹ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ڈینٹسٹ ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور فزیو تھراپسٹ ہیں. تو میرا ایک خواب تھا کہ میں اس کو کمپلیکس کو جس میں جی بالکل ڈرماٹولوجسٹ ہیں, بالکل بالکل بالکل. تو الحمدللہ کہ ایک ہی جگہ پہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا ڈفرینٹ اپنی جو پرفارمنس ہے وہ دے رہے ہیں ایستھیٹک کے حوالے سے بھی. اور ہم دیکھا جاتا ہے کہ لیڈیز کو کوئی اور ادر ایشو تو نہیں ہے, ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہماری ڈفرینٹ ساری چیزیں آپ یہیں پہ ڈیل کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ سب چیزیں ہیئر سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ یعنی کہ ملیں گی. جی بالکل, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج کل پگمنٹیشن, اینٹی ایجنگ اور رنکلز کا اتنا زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی پگمنٹیشن تو زیادہ تر جو آج کل ایشوز آ رہے ہیں, ایک تو جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ ہم پیزا, برگر اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں, اور ایک تو یہ بھی ریزن ہے, اور دوسرا ہارمون کا مسئلہ ہوتا ہے لیڈیز میں, اور تیسرا ایچ بی کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اور آپ نے دیکھا اسٹیرائڈس تو ایسے یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ ایک خاص چیز ہے, مفت میں مل رہے ہوں, اور ہم نے مسٹ ہے. اور ہر عورت کہتی میں نے زیادہ تو کچھ نہیں لگایا, بس میں نے کیا ایک صرف گولڈن پرل لگائی ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں ایک گولڈن پرل کے اندر کتنی کریمز مکس ہیں. تو زیادہ تر جو آج کل ایشو آ رہا ہے وہ اسٹیرائڈ یوز کرنے سے. جی بالکل. اچھا, اس کا کوئی بیسٹ سولوشن
तीनों का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप बताएं। जी जी, इसमें इफेक्टिव हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। हम पहले वो क्लाइंट्स को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि विच वन ट्रीटमेंट बेस्ट फॉर हर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने वो ट्रीटमेंट करनी होती है, जिसमें एक सबसे अच्छी ट्रीटमेंट PRGF है, PRP लोग करवा रहे हैं, और सबसे एक उससे भी अच्छी ट्रीटमेंट है जिसको मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, प्रोफाइलो है, ठीक, हाँ, तो वो बहुत अच्छा है। फिर डिपेंड ये करता है कि कौन सा क्लाइंट कितना पेइंग है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें चलती ये हैं। चीज़ें चलती तो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? देखिए, एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप अच्छा खाएं, ठीक है, जंक फूड से अवॉइड करें। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल करेंगे तो एज नहीं आपके ऊपर आएगी, ज़ाहिर सी बात है। जब आपने खाना ही जंक फूड है और डिफरेंट ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपकी इंटरनल हेल्थ, गट्स जो है हेल्थ को ख़राब करे, तो वो ज़ाहिर सी बात है बाद में वही कुछ नज़र आ रहा होगा, जो आपने खाया है वही आपको आउटपुट उसका मिल रहा होगा। तो इसलिए आप फ्रूट जूसेस और सैलेड पे ज़्यादा, और बाकी इनटेक बहुत लोगों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, ये खाएं वो खाएं। तो आप ये देखें, आपका पेट है, आप उसको पेट ही रहने दें और उसको मज़ीद आप उसको ना वो किसी और चक्कर में ना डालें, उतना खाएं जितनी आपको ज़रूरत है। तो पिगमेंटेशन का और रिंकल्स का बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? सबसे पहली बात तो आप अपनी हेल्थ जो डाइट है वो आप अपनी अच्छी रखें, ठीक है। इसके बाद जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि एक और ख़ास टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सजदा लंबा किया करें। ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है और आपके फेस ग्लोइंग भी होता है, और प्लस एक एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है आप डिफरेंट क्रीम से कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप सजदा लंबा करें। सजदा लंबा नहीं, वैसे आप अपनी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है जी जी, मैं उनको भी ये कहती हूँ, देखिए ट्रीटमेंट करना, क्योंकि ऑलरेडी वो पिगमेंटेड स्किन है उनकी, ऑलरेडी जो है ना वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक ये मशवरा भी जरूर देते हैं कि आप ऐसे भी करें। जी ठीक है। तो ट्रीटमेंट आप कौन सा करती हैं यहाँ पे? ट्रीटमेंट ज्यादातर PRGF किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और प्रोफाइलो है, और प्लस जो है ना PRP है। PRP, ठीक है। तो किस एज में जो है ट्रीटमेंट एंटी एजिंग का, पिगमेंटेशन का स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है, अगर आपको ब्राउन स्पॉट थोड़ा सा भी हुआ है तो प्लीज़ आप क्रीम्स घर से ही ना लगाना शुरू कर दें। आप किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे चेकअप कराएं, उसके बाद जो वो आपको गाइड करेगा आप वो काम करें। सबसे गलत बात यह है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस को देख के, और जो वो पेड आपको पता है प्रमोशंस हो रही होती हैं, उनमें एक्ट्रेस को देख के वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो वो ब्रांडिंग बता रही होती हैं, जो वो कह रही होती हैं, वही सब लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बेस्ट बता सकते हैं। होना भी यूं ही चाहिए, लेकिन अक्सर यहाँ इतना गलत कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी आपने बताया कि डिफरेंट ब्लॉगर्स को डिफरेंट वही वीडियोस में देख के, लेकिन वो दिखाया कुछ जाता है, सिर्फ बिल्कुल वो होता ही नहीं है जो कुछ आप देख रहे होते हैं, और आप उसके पीछे लग के आप इतने पैसे जाया कर रहे हैं। तो वही आप अगर डॉक्टर को चेकअप करा लें तो आपको सही गाइड कर देंगे, सही गाइड कर देंगे। तो इसमें तो कोई वो ऐसी बात नहीं है, बजाय आपने पूरी अपनी वैनिटी इतनी भर लेनी है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपने लगाना क्या है। तो ये एक चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन हो जाती है, ये मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या ऐसे ख़वातीन चीज़ें करें कि उससे बच सकती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप डाइट का ख्याल करें। देखिए, उस वक्त उनको ज़्यादा मेडिसिन वगैरह पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ ही इस तरह की है। और दूसरा है आप उनको डाइट पे ज़्यादा, यानी कि फूड जो है उनको हेल्दी फूड दें, और फ्रूट और जूसेस वगैरह, ताकि पिगमेंटेशन का एक वो जो है वो अमल स्टार्ट ही ना हो। एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो उस वक्त सेंसिटिव होती हैं, तो कोई भी मेरे ख्याल में मेडिसिन उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो स्टार्ट? जी, आफ्टर प्रेगनेंसी ज़्यादातर लोगों को तो वैसे ही ये सॉर्ट आउट हो जाता है मामला, ठीक है। जिनका रह जाता है फिर उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं, और उसके बाद वो अपनी ट्रीटमेंट को पूरा करें, और लाजमी करें। अगर वो उस वक्त नहीं जाएंगी तो वो फिर देर तक रहेंगी। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रेस, आजकल ख़वातीन को तो स्ट्रेस और डिप्रेशन तो बहुत एक समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आजकल ख़वातीन का, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो उसमें भी ये इफेक्ट करता है? असल में लोगों को ना बहुत ज़्यादा शौक हो गया है कि हम जो चीज़ देखें वो हमारे पास हो। स्ट्रेस की एक रीज़न ये भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने उसमें लिमिटेड रहते हैं और खुश रहते हैं तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने घर को, अपने बच्चों को, इन चीज़ों को टाइम दे, फजूल बातें ना सोचें। अच्छा, मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि आप वर्किंग वुमेन भी हैं, माँ भी हैं, बीवी भी हैं, तो इतनी चीज़ आप मेंटेन कैसे करती हैं?
बस मैं थोड़ी सी और साथ में आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, बस मुझे इसको थोड़ा भी सा कैसे मेंटेन करती जी हैं आप? ये तो बस मुझे शौक भी है माशाल्लाह से। मेरे बच्चे जो हैं उनको भी मैं टाइमिंग एक प्रॉपर देती हूँ, इसलिए मैंने 11 to 5 तक टाइमिंग रखी हुई है, क्योंकि उनका भी एक टाइम होता है, गोल्डन टाइम है बच्चों का, हमें देना चाहिए। तो उनको भी टाइम जो है मैं प्रोवाइड करती हूँ, और साथ हस्बैंड तो इम्पॉर्टेंट है ना भाई, वो तो आपकी लाइफ है। तो ये ज़रूरी है, आप जब अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं तो फिर आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बच्चों के हवाले से, हस्बैंड के हवाले से कोई टेंशन या परेशानी है, तो आप किसी जगह पे भी चले जाएं, लेकिन आप खुश नहीं होंगे और कामयाब भी नहीं आप। अच्छा, मैंने आपको अक्सर देखा है कि आपने जितना भी काम किया है वो अपने ही प्लेस पे रह के किया है, मतलब जैसे अक्सर इवेंट्स होते हैं बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि डॉक्टर्स आपके पास आते हैं, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, इसका क्या राज है? बस ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई इज्जत है, और बहुत कम टाइम में मैंने आपको देखा है कि आप बहुत आगे गई हैं। बस मैं अपने काम से सीरियस हूँ, मुझे किसी से लाइक दिस लोगों को होता है ना, दूसरों में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होती है, मुझे किसी चीज़ में नहीं है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ और उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये है कि मुझे ये जो टाइम है मुझे अपने बच्चों को और घर को देना चाहिए, घर को देना, जिसलिए कि मुझे ज़रूरत भी नहीं होती। लाइफ यानी आपने बहुत मेंटेन करके रखी हुई हाँ, है। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ये टफ नहीं लगता सब कुछ? नहीं, मुझे मज़ा आता है। मुझे मज़ा आता है कि मेरे अगर बच्चे खुश हैं, वो अच्छा वेल मेंटेन्ड हैं, वो अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे सेटिस्फाइड हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अचीवमेंट भी बहुत, और आपकी तो मिसाल देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें आपको एक वर्ड मैं बोलूँगी, आपने क्विकली एक जो भी आपके माइंड में वर्ड आए तो आपने वो बोलना है। तो पहला हमारा लफ्ज़ है मोहब्बत। मोहब्बत मैं अपने शोहर से करती हूँ। माशाल्लाह, लगता है आप अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत। बिल्कुल, देखिए वो आपकी लाइफ है, अल्लाह ने भी जो सबसे पहले एक चीज़ बनाई है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। मियाँ बीवी, बिल्कुल, अल्लाह को भी तो यही पसंद है। समझने की बात है, लेकिन इतनी खूबसूरत औरतें खूबसूरत रिश्ता नहीं अपने हो सकता। हस्बैंड को इतनी मोहब्बत करती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आज जो इस में कामयाबी मैंने हासिल की है वो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, उनकी मोहब्बत है। अदरवाइज तो आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें, आप कभी भी नहीं कामयाब हो पाते, क्योंकि आपका कोई ना कोई एक कोना होता है वो खाली होता है। तो इसलिए आप पहले उसको फिल करें, पहले अपनी फैमिली को टाइम दें, और अपने हस्बैंड को जो उनका एक टाइम है वो आप उन्हें प्रोवाइड करें, उनकी केयर करें। उसके बाद आप जो भी करेंगी आप कामयाब हैं, क्योंकि उनके दिल से दुआ होती है ना कि मेरी मिसेज जो है इतनी एफर्ट कर रही है बच्चों पे और मेरे पे, तो मुझे नहीं लगता वो औरत कभी नाकाम होती है जो अपने शोहर के कहने पे चलती है। ठीक है। अच्छा, घर से ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई और हो ही नहीं सकती। ये एक प्यार मोहब्बत और ज़ाहिर सी बात है, घर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए तो मैंने आपको पता है सेटअप भी अपने बच्चों के साथ ही रखा हुआ है कि उनको भी देख सकूं और इसको भी कर सकूं। भी देख सकूं। जी, माँ बाप तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, और माँ बाप से प्यारी कोई चीज़ भी नहीं है। लाइफस्टाइल स्मूथ हो, बंदे को सिंपल मतलब रहना चाहिए, कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप जो भी हो, बस मेरा एक अक्सर वो मेरी जो डॉक्टर्स हैं वो खास रही होती है, मैम आप खाने पीने में किसी चीज़ में आप में कुछ ऐसा एटीट्यूड नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप जितना सिंपल रहते हैं उतने आप अच्छे होते हैं, बल्कि खुद भी इजी रहें, दूसरों को भी रहने दें। आप कहीं जाएं कहीं भी जाएं, आप वो ये ना कहे कि ये आ गया तो पता नहीं मैंने इसके लिए क्या क्या करना है, बल्कि आप इतने स्मूथ हो कि वो कहे कि नहीं ये तो ऐसा बंदा है कि इसको जो भी दे दो तो ये राजी है। तो मेरी बेसिकली नेचर ऐसी। मोबाइल हाँ, बस ज़रूरत के तहत वरना नहीं, ज़रा भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट। उसमें आपकी ही फील्ड से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसमें मैथ और फैक्ट्स होंगे, तो उसके बारे में आपने हमें थोड़ी सी नॉलेज देनी है कि वो फैक्ट है या मैथ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटी एजिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बुढ़ापे में इस्तेमाल करनी चाहिए? नो। अच्छा, कब स्टार्ट कर लेनी चाहिए? ये 30 के बाद आप स्टार्ट कर दें। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सन एक्सपोजर जो है वो पिगमेंटेशन कर देता है? हाँ जी, बिल्कुल। आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, किस एज में पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है? ज़्यादातर तो 35 के बाद, बट जो स्टीरॉइड यूज करते हैं कहा जाता है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में होती है, जवानी में पिगमेंटेशन नहीं होती है। छोटे बच्चियों को भी पिगमेंटेशन है, 24 इयर्स की है उनको भी पिगमेंटेशन हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, बोटॉक्स और फिलर के बारे में कहा जाता है कि ये स्किन को डैमेज कर देते हैं?
नहीं नहीं, फैक्ट है ये मिथ है? नहीं ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं होता। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें बहुत दिया। शुक्रिया आप सबका कि आप मेरे पास आई, मेरे इट्स माय प्लेयर कि आपने मुझे इतना ऑनर दिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। अच्छा, एंड पे मुझे और मेरी ऑडियंस को, ऐसी खवातीन जो घर में बैठी होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती या जो आ नहीं सकती, तो उनको आप कोई टिप्स देना चाहें अपनी एंटी एजिंग से रिलेटेड, अपने स्किन को मतलब यानी स्किन केयर से रिलेटेड कोई आप टिप्स देना चाहें तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है और वो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव रहें, और दूसरी बात आप अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह के साथ इतना मजबूत करें कि आपको कोई भी मतलब कि कोई भी टेंशन हो ही ना। जब आपका एक ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत है तो आपको मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ ऐसा नहीं होता। तीसरी बात यह है कि हेल्दी फूड आप लें, बजाय कि जो आप देखते हैं कि एड्स में क्रीम्स वगैरह, देखें जो एड्स में क्रीम्स वगैरह बताई जा रही होती हैं उन्हें तो नहीं पता होता आपकी स्किन कैसी है, लेकिन आपको पता है। लेकिन आप अपने डॉक्टर को प्लीज़ जाके आप ज़रूर चेकअप करवाएं, उसके बाद उनके बाद जो आपको वो रेफ़र करें आप वो यूज़ करें। मेरा ये आपको मशवरा है, अपनी डाइट पे आप ध्यान दें, ठीक है। इंटरनल आप अच्छे होंगे तो एक्सटर्नल आप अच्छे नज़र आएंगे। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जो है उसे लगाएंगे और कोई मैजिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैडम। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।